देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि अब तक की जितनी परफॉर्मेंसेज हमने देखी हैं, दो टीम सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आ रही हैं, सबसे ज़्यादा सॉलिड जोन में नज़र आ रही हैं, जिनमें सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, एक अफ़गानिस्तान और दूसरी ऑस्ट्रेलिया। तो अगर इन दोनों टीमों को हम देखें तो इनका राइट प्रोसेस है, इनकी बैटिंग क्लिक कर रही है, इनकी स्पिन बॉलिंग काम जो है वो कर रही है, और इनकी फास्ट बॉलिंग जो है वो डिलीवर कर रही है। तो जब ये तीनों चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं तो आपका जीतना थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है इस वक्त अफ़गानिस्तान की टीम एक ऐसा यूनिट बना हुआ है जिसको कंडीशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और उनका बिलीव और ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज दे नो दे प्लेइंग इन अ कंडीशन वेयर दे कैन परफॉर्म बेटर and their percentage of success is higher. So why not to have that confidence? Obviously we're playing well, and why not to have a confidence that we're playing in West Indies, which will offer a lot of opportunity to all of our players to go and perform well. And they must be on a high confidence a high confidence at the moment. So I don't think so there should be anything should stop them until unless they get complacent, which I think it's not the case at the moment, because the last World Cup they played fantastically well as a team. They were out of the tournament only because of a one game which could have been won by them, but you know, what a game Maxwell you know played a fantastic in that one. So I think at the moment they are cruising, and they're cruising for a right reason, because they brought the right combination into this tournament, right confidence into this tournament, and the condition is offering them all the right ingredients to win this tournament, to go further with this tournament. Because I have another follow-up question on Afghanistan's success. Is it also because they haven't been playing a lot of cricket at home, so they get to play across? Exactly, so they play all over the world, and that's because of that they can adapt to any conditions, and all of their facets are pretty well balanced. देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, एक तो their exposure to play around the world as a T20 pros, number one, the hunger to do well at that level. You know, this unit basically have a great hunger within themselves that we should be the someone emerging nation, and we should have this tag, rather than one of the team के जिसको कोई भी जाएगा और जीत जाएगा। तो अभी आप देखें उनका जो ग्रोथ है वो राइट वे में, उनकी जो प्लेयर की बॉन्डिंग है वो बड़ी राइट वे में एड्रेस की गई है। राइट इंटेंशन है। I would like to add one thing into it. By the time Jonathan Trott took a charge as a coach, he brought that energy into the team. He fixed those issues which were not addressed before, like bringing a fast bowler into the team, and also Umar Gul was that time when he was there, and then he make sure that you know that we need to have a good fast bowling unit also to win matches in different conditions. So I think Jonathan Trott as a mindset, he's doing a fantastic job for the Afghanistan team. Took the words right out of my mouth. I think the inception of him coming into the side, we saw them have success in the 50 over World Cup just last year, what those wins did. I love those little videos you see on ICC, a little fly in the wall of inside the team room, and the way he speaks to them, the feeling that he garners within the group, it's so inspiring, even just as a fan of the game watching. And I loved a moment when he said to Mohammad Nabi, how long have you played for Afghanistan? 24 years. And have you ever beaten New Zealand? No. And just that was the drive, that was the motivation. It's to get better, it's to challenge these big sides, and Afghanistan is no longer an associate nation. I had them in my top 4 from the day dot. So I think maybe a little bit of Marty Oracle's rubbing off on me at the moment. And seeing how well they've done, I think they are well and truly a threat in this competition. And it's a real wake-up call for such a strong side as New Zealand that, you know, World Cups are ruthless. You lose a couple of games, you're out. And it's all about momentum in this format of the game, and it just opens up a really interesting Super 8 now, to think that for the first time in such a long time we probably won't be seeing the Kiwis. I'm not saying anything until the game that starts at 5:30 a.m. of course in just a few hours. Give New Zealand another life. What do you reckon? We can all dream it can happen, can't we? I mean, the likelihood is, you know, pretty low, but we can all dream. Well, anything can happen in this World Cup, and if you're sitting with some Pakistani fans, I'm telling you, don't live in a dream. You can only hope for that. Don't live in it. But yeah, anything can happen. We've seen how all of these associate teams have punched above their weight in this World Cup, और PNG की तरफ से भी हमने वो फाइट देखी है। बट हम अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो यूनिस, इनकी तरफ से हमेशा से इन T20s जो फॉर्मूला हमें नज़र आया है वो यही है कि गो फॉर द बिग रन्स,
पुट अप अ टोटल एंड देन यू नो स्कोरबोर्ड प्रेशर के साथ आप स्क्वीज आउट करें ऑपोजिशन को विद द बॉल. बट इस बार उनके क्विक्स ने भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. इट्स नॉट जस्ट द स्पिनर्स, वी हैव सीन फजल हक फारूकी इन द पावर प्ले ऑफ कोर्स एंड इन द डीपर एंड ऑफ द गेम एज वेल जब वो वापस आते हैं. हाउ क्रिटिकल हैव अफगानिस्तान बीन स्पेशली विद देयर बॉलिंग इन दिस वर्ल्ड कप? देखिए, एक तो उनको समझ में यह बात आ गई कि अब वो सिर्फ स्पिनर से मैचेस नहीं जीत सकते. जिस तरह उन्होंने इंडक्शन की है, फजल फारूकी की बात है, नवीन उल हक की बात कर लें, फिर उमर ज़ई की बात कर लें, तो देखिए ये आपके पास बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उनके पास अगर हम राशिद खान की बात करें, मुजीबुर रहमान की बात करें, तो ये तो थे पहले से ही. फिर नूर अहमद की बात करें तो ये क्वालिटी उनके पास पहले से मौजूद थी. फिर उनके बैटर्स में भी यही था कि अगर हम गुरबाज की बात करें, उसके बाद इब्राहिम की बात करें, तो ये तो था उनके पास. लेकिन फॉर समहाउ उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि आप एक दो प्लेयर पर मैच नहीं जीत सकते जैसे पहले होता था. तो अब उन्होंने ये एक फार्मूला बना लिया है कि आपको रन्स भी करने हैं, उसके बाद फील्डिंग भी अच्छी करनी है, और जहाँ जहाँ आपके ऑलराउंडर्स काम आते हैं तो उनको भी अकॉर्डिंगली आपने यूज़ करना है. और उनकी जो एनर्जी है वो तो हम बहुत पहले से बात कर रहे थे कि उनके पास एनर्जी है, उनके पास ये T20 की एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन फॉर समहाउ वो एक इसको पार नहीं कर पाते थे. आज अब वो इस सिचुएशन पे आ गए कि हम ये देख रहे हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप जीत चले हैं. इस बिल्कुल चांस है उनके बिल्कुल पास. उनके पास चांस है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड नहीं रहती, पाकिस्तान नहीं रहती, तो और फिर इंग्लैंड भी नहीं रहती, तो किसी एक ऐसी टीम के लिए चांस है कि उनको सिर्फ ऑन द डे क्या करना है. अगर उनके सामने ऑस्ट्रेलिया है तो उसको उसके खिलाफ जीतना है. फिर साउथ अफ्रीका का आपको पता है कि जब वो बिग स्टेज पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्लैप्स कर जाते हैं. एक टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया है जिसको बीट करना है, चाहे वो सेमीफाइनल में होंगे या फाइनल में होंगे. तो आपको कुछ पता नहीं है कि ऑन द डे आपके बॉलर या कोई बैटर ऐसे आ जाए वो कि अमेजिंग इनिंग खेल दें. तो मेरे ख्याल से ये इनके पास चांस है. इसी तरह बांग्लादेश के पास भी ये चांस मौजूद है कि अगर वो आगे जाके क्वालिफाई करते हैं तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा कोई ऐसी टीम ये वर्ल्ड कप ना जीत जाए जो आज तक कभी आई नहीं है और आज इस दफ़ा जीत जाए. तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मौका है. अगर दो तीन टीमें खास तौर पर पाकिस्तान नहीं रहती, उसके बाद इंग्लैंड नहीं रहती, न्यूजीलैंड नहीं रहती, क्योंकि ये बड़ा करते हैं, ये क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल, टॉप 4 में अच्छी टीमों को ये निकाल देते हैं. बेशक खुद नहीं जीतेंगे आगे जाके, लेकिन निकाल देते. तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा चांस है बांग्लादेश के लिए भी और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के लिए. मुझे लगता है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि PNG के खिलाफ कोई ऐसा मैच खेलें जिससे उनकी रेपो नीचे आए और जिसकी वजह से कोई ऐसी टीम आ जाए जो कि नहीं आनी चाहिए. बिल्कुल, और बहुत करीब है अफगानिस्तान भी टुवर्ड्स दैट ड्रीम. जैसे यूनिस ने कहा कि यू नो वी माइट सी अ न्यू टीम लिफ्ट द वर्ल्ड कप. It's a very real possibility. Afghanistan have that perfect balance इस पूरे वर्ल्ड कप में with their batting, with their all-rounders, with their spinners, with their fast bowlers. एक इंटरेस्टिंग मैच है PNG के अगेंस्ट भी, बट इनके अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ भी बहुत एक एक्साइटिंग मैच होना है. बट अ लॉट राइज ऑन हाउ अफगानिस्तान प्ले टुमारो, बिकॉज वही मोमेंटम की बात है कि अगर ये थ्रू कर जाते हैं तो ऑफ कोर्स वी विल सी अफगानिस्तान गोइंग फॉरवर्ड.